Hello, everybody. Welcome to our YouTube channel Harshita Vivek Talks. On this channel, we are going to majorly talk about three segments. One is around career, second is around travel and lifestyle, and third one is around passion projects which we do or follow. So इस सीरीज का पहला वीडियो I want to put about MBA in Germany. MBA इन जर्मनी आई थिंक पहले सुनते ही हमें पहली फीलिंग ये आती है कि यार जर्मनी में भी MBA करते हैं क्या लोग। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। इनफैक्ट हर्षिता ने भी मुझसे पूछा कि यार तुम जर्मनी कैसे चले गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी, और कैसे मैंने कॉलेज चूज़ किया, कैसे मेरा मेरे कॉलेज का जो एक्सपेंस है, मेरी जो फ़ीस है और मेरी टोटल ओवरऑल MBA करने की फ़ीस है, कैसे मुझे वो इंडिया से भी सस्ती पड़ी। इंडिया से भी सस्ती पड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने ट्राई किया है कि जो मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन है उसको हम हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रखेंगे, सो दैट एवरी वन कैन फॉलो इट अलॉन्ग। एंड इन दिस प्रोसेस अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप जस्ट कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग विल ट्राई टू आंसर, बट विल ट्राई टू कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो why to do an MBA in Germany? Why did I choose to do an MBA in Germany? What are my personal experiences? And can I give you some details around MBA and also give you some tips with regards to how you can get an admission? What exams do you have to write? So let's dive into our video. So the very first point we want to talk about MBA in Germany is the language of instruction. Are these MBA programs in English or in German? So the answer is majority of the programs are in English. So it's not a problem for you. You can come and take admissions in an English speaking program, but also at the same time it's important for you to learn the language. लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मे बी जॉब के लिए ज़रूरी नहीं हो सकता, कभी कभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाता है विदाउट लर्निंग लैंग्वेज, बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं पे आपको कॉफ़ी पीना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम आपके साथ कोई बंदा हो या वेटर हो वो आपको इंग्लिश में गाइड कर सके। तो आपको कुछ जर्मन तो आना चाहिए। हेलो और गूटन टाग से नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ तो सीखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ कोर्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है? सो ड्यूरेशन आपका 12 मंथ्स हो सकता है, इट कैन इवन बी 21 मंथ्स, 24 मंथ्स। सो यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स। सम यूनिवर्सिटीज़ would like to give you German language as well with your MBA education, so that once you graduate you are prepared for what's about to come next. You will apply to jobs and a lot of employers will ask you whether or not you speak German. So course duration 12 to 24 months. You can yeah, you can look into the details. What are the programs which are like 12 months, which are 21 months, 15, 18? So you will find multiple options. Third thing is with regards to the fees of MBA. So let's say if you apply to universities of applied sciences, Hochschule or as they are called, you can also do your MBA in 1500 euros per month, so which comes out around 1 to 2 lakhs per semester. So it's not that much, and you get an exposure of an international MBA. And then there are private universities which charge you for the whole program. So fees can range anywhere from 28,000 to 36,000 euros. So which you have to keep in mind. So fees do vary. It depends on how reputed your B school is, um, how is it perceived within Germany, and the brand it carries, and also whether or not they are bringing international faculties, these kind of things. So after this we come to the admission section of MBA in Germany. तो एडमिशन के लिए आपको क्या कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना पड़ता है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव इज़ अ ट्रांसक्रिप्ट. सो आपकी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करती हैं, या तो फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट वगैरह होते हैं, जो भी आपका यूनिवर्सिटी देता है वो होना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ आपके पास एक जी मैट या GRE स्कोर होना बहुत ज़रूरी है. कई यूनिवर्सिटीज़
आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, बट इंटरनेशनली ये रिक्वायरमेंट है। तो आपकी अगर यूनिवर्सिटीज़ एग्जेम्प्ट कर रही है तो थोड़ा बहुत आपको डाउट करना चाहिए इस यूनिवर्सिटीज़ को, दे आर नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जी मैट स्कोर या जी आर ई स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या जी मैट होना ज़रूरी है, कैसे आप कम जी मैट स्कोर पे भी एडमिशन और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू hear about these topics. And the third thing is English language proficiency. So either आपको TOEFL देना पड़ता है, बट यहाँ पे यूरोप में स्पेशली IELTS ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड द लास्ट थिंग विच यू वांट टू डिस्कस इज जॉब अपॉर्चुनिटीज़. So what are the job opportunities for international students when they come for an MBA in Germany? Can you manage it without German? Answer is yes, maybe. I have seen a lot of students, they have gotten the job inside a company um, without knowing much German. So A1 level पे या even not even A1 आपको जॉब मिल चुकी है, मैंने देखा है ऐसा। बट those are few lucky ones. तो आपको थोड़ी सी जर्मन तो आनी चाहिए, आपको A1 आना चाहिए, so that you can convey योर इंटरेस्ट कि हाँ मैं जर्मन सीख रहा हूँ, मैंने सीखा है, एंड कंपनी ऑल्सो रिकोगनाइजेज योर इंटरेस्ट, एंड देन दे आर ऑल्सो विलिंग टू प्रोवाइड यू opportunities to learn German after you join the company. And if, for example, if you want to have if you want to apply for a job here, it's एज मैंने पहले बोला कि आपको पोर्टल में जाके जॉब अप्लाई करना पड़ता है। तो यू हैव टू नेटवर्क, यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू रिकोगनाइज कि कभी आपको कोई लीड मिल सकती है, तो आपको तुरंत ही रेडी रहना पड़ता है, एप्लीकेशन सेंड करते रहना चाहिए। एंड फिर आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, देन देर इज़ अनदर प्रोसेस, आपको 3 स्टेप प्रोसेस होता है, कभी कभी 2 स्टेप होता है। HR से बात करते हो, फिर हायरिंग मैनेजर से बात करते हो, फिर मे बी हायरिंग मैनेजर के मैनेजर से बात करते हो। सो दिस इज़ नॉर्मल हायरिंग प्रोसेस विद रिगार्ड्स टू जॉब। सो यहाँ पे जॉब्स मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, मैंने देखा है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का, बट अल्टीमेटली दे आर एबल टू गेट अ गुड जॉब in a German company or international company. So it's very much possible. So if you are interested in learning how did I get jobs in Germany, what did I do and what did I do differently, I'll also share another video which will be on job search. So please follow my YouTube channel. Do let me know if you want me to cover any other topics. If you have any other doubt, please put it on the comment section. So we'll be reading it and we'll try to answer it. And if we find आपको एक different video चाहिए with particular details around university selection or job opportunities, so we are happy to get into details as well. Okay, so with this we are ending our video here, and do subscribe. We will be uploading our videos weekly, so you will find a lot of videos in this series of career. So just stay tuned. Till then, take care. Bye bye.